Hello everyone. Today my aim is to discuss some topic which is basically based on why my slide is not on. Wait for 2 minutes. Yeah, now it's okay. So in last class, I am saying you something about some ordinary differential equation concept. So today my aim is to discuss something about that is Wronskian of nth order homogeneous differential equation. So in this lecture, I covered this topic. First thing is that why the okay, no problem. Yeah, I am now in this topic. In this lecture, I have covered. First thing is that examples of nth order linear differential equation and second thing I cover Wronskian definition and third thing I cover Abel's formula. Abel's formula, which is used to find Wronskian. Okay, so in this lecture, I cover this topic. So first thing is that the example of another order linear differential equation. So first thing is that what do you understand by linear differential equation? So in that is in linear differential equation, basically we cover something about higher general theory of linear differential equation of higher order. So here I have some concept about that is general theory of linear differential. Now I close my camera. Okay, so stay tuned with us. I think my voice is too slow. So first thing is that key try to understand what I'm trying to say you something about the general theory of linear differential equation of higher order. So first thing is that this is general theory of linear differential equation of higher order. Okay. So here try to understand the definition part. Here, if you have something, the expression like this, a0x d to the power ny upon dx to the power n plus a1x d to the power n minus 1y upon dx to the power n minus 1 up to dot up to a n minus 1 x
y dash plus an x y, okay, which is equal to qx. Then here x belongs to I, which is equal to whose interval a comma b, which is a part of continuous. So here I am say that where a0x comma a1x dot to anx and qx are continuous function of x and a0x, which is not equal to 0, okay, for all x. This is a simple general theory of linear differential equation, okay. So here it can be written like this. So it can written as a0x t to the power n plus a1x d to the power n minus 1 plus plus an minus x an minus 1 x into d, okay, plus an x, okay. This is the whole multiple with y, which is equal to qx. Now, and where d, which is equal to d by dx, this can be written as L dy, that is linear differential of y, which is equal to qx, where LD, which is equal to a0 x d to the power n plus a1 x d to the power n minus 1, okay, plus plus an minus 1 x into d plus anx. This is simple linear expression for the general theory of linear differential equation for higher order. So this is the type of only, we can say that this is the only definition part. Now the classification of linear differential equation may be classified into something like homogeneous differential equation, non-homogeneous differential equation. And further, we study about something variable coefficient and constant coefficient, and then linear combination, then convex combination, and now and further linear independent function, linear dependent function. So before I'm go through with this topic, one thing is that I'm show you something about principle of superposition, because principle of superposition can define here uh, Wronskian. Okay. So now here I am say you something about the principle of superposition. Okay. This is a part of only the differential equation, which have some higher order ordinary differential equation. Now the next part will be your principle of superposition. So the principle of superposition may be considered for nth order linear differential equation. Okay. So wait for 2 minutes. Just I am searching in my notebook where is principle of superposition. Yeah. Okay.
सो आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? पहले मुझे ये बताओ कि ये चीजें जो भी हैं वो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं? ओके। तो देखो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Here is the definition part, that is principle of superposition. So what is principle of superposition? Okay. So consider the second order non-homogeneous differential equation. Consider the second order non-homogeneous differential equation. The expression for the second order, which is related to your homogeneous part. So we can write like this: a0x y double derivative plus a1x y dash plus a2x y, which is equal to qx. Okay, this is the this is the second order non-homogeneous differential equation. Okay, where here is something about a0x which is not equal to 0 for all x. Okay, then a0x, a1x, a2x and qx are continuous function. Continuous function. Then so this is your principle of, okay, hold the continuous function. Okay, so let the two y1 and y2, this is two y1 and y2 are two solution of the equation. मतलब क्या है कि सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की एक्सप्रेशन लेते हैं हम, मतलब डेरिवेटिव के साथ में। और जैसे सेकंड डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, सिंपल हो गया यहाँ पे, देन इक्वल टू क्यू एक्स अगर होगा, जहाँ पे a0x a1x a2x qx ये कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। एंड टेक y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब मान लेते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन है। तो जनरल तरीका क्या होता है कुछ भी चीज़ को लिखने के लिए, आप कैसे लिखते हो कि y(x) इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1 y1 प्लस c2 y2 होना चाहिए। ओके, देन इनिशियली आप इसको और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज a0x विच इज इक्वल टू, सॉरी, क्या कर सकते हैं इसको हम, सो a0x यहाँ पे लिख सकते हैं c1 y1 प्लस c2 y2 द होल डेरिवेटिव प्लस a1x, यहाँ पे लिख सकते हैं c1 y1 प्लस c2 y2 टू द डेरिवेटिव। ओके, प्लस a2x c1 y1 प्लस c2 y2 इक्वल टू cos x। सो देयर फॉर इम्प्लाई c1 यहाँ पे क्या हो सकता है, a0x y1 डबल डेरिवेटिव प्लस
A1 x, यहाँ पे हो सकता है Y1 डैश प्लस A2 x, Y1 प्लस C2, यहाँ पे हो सकता है A0 x, Y2 डबल डेरिवेटिव प्लस A1 x, Y2 डैश प्लस A2 x, Y2 which is equal to QX. Okay, therefore imply C1 QX, C2 QX which is equal to QX. Okay, therefore imply यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं C1 प्लस C2 -1 होल का यहाँ पे QX which is equal to 0. Therefore imply C1 प्लस C2 -1 which is equal to 0 if QX which is not equal to 0. Therefore imply C1 प्लस C2 -1, यहाँ पे अगर -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये एक पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें केसेस राइज हो सकते हैं। क्या क्या केस होगा, जैसे एक केस में हम ले सकते हैं कि भाई जब QX मतलब इक्वल टू 0 रहे अगर, तो केस के विषय में बात करूँ तो अगर जैसे QX जो है आपका इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि C1 जो होगा वो इक्वल टू, ऐसे बोल सकते हैं इसको, तो इन प्लेस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, आपका सारा चीज 0 हो जाएगा। ओके, तो इन प्लेस ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 0 प्लस C2 0। ओके, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयर फॉर इम्प्लाई 0 = 0 हो जाएगा, यहाँ से बात यही समाप्त। तो ये हो गया। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये तो भाई पार्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का है, देन आपको मैं क्वेश्चन, अब इसके बाद क्या करते हैं, रॉन्सकियन के पार्ट पर आते हैं जिसको हम नाम देते हैं एबल्स फार्मूला के नाम से। ठीक है, बीच बीच में छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि अगर ये यहाँ पे QX = 0 अगर हम ले रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं ना कि लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है ये, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे कि अगर ये होमोजेनियस है, अदरवाइज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट्स व्हाई हम से दैट कि QX = 0, QX ≠ 0। सो वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, सिंपल है, ये आप पहले से पढ़ चुके हो, तो इसमें ज़्यादा मैं नहीं जानूंगा। देन मैं आपको बताऊंगा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। ओके, सो इसी में एक छोटा सा डिफिनीशन है किस चीज़ का, लीनियर कॉम्बिनेशन का। ओके, चलो देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। होल्ड 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 होल्ड, समथिंग ब्लंडर हियर, या ये क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देन पेन सेलेक्ट कर लिया, अभी इसको थोड़ा बड़ा कर, अब ठीक है। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिंपल सा है कि जैसे कि हम बात करें, लेट F1 F2 डॉट 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 Fn अगर कुछ है समथिंग, ये क्या है, आर एन फंक्शंस डिफाइंड ऑन कॉमन डोमेन, डोमेन D, देन द एक्सप्रेशन C1 F1 प्लस C2 F2 प्लस C3 F3 प्लस डॉट 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 प्लस CN Fn, where
where C1 C2 dot 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 Cn are constant is called the linear combination of F1 F2 F3 up to Fn। ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशन होता है इस तरह कि मान लेते हैं कोई फंक्शन आपका दिया हुआ है, एक कॉमन डोमेन पर अगर डिफाइंड है सिंपल डी, तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा अगर कुछ कोफिशिएंट्स के साथ आते हैं, जैसे कि C1 C2 Cn क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गए, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या बोला जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। इसी में एक छोटा सा टर्म होता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ओके, सो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है उस पर थोड़ी बात कर लीजिए। That is next one is your convex combination। देखो क्या होता है ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। और जैसे इसमें जो होगा वो समेशन I इक्वल टू 1 से n है, और CI FI x हो जाए अगर इस तरह, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन is called convex combination F summation I is equal to 1 से n CI which is equal to 1 and CI greater equal to 0 for all I। Okay, now next one is your linear independent function। Next one is your linear independent function। It means what? It means the n function में क्या होगा, F1 F2 up to Fn are called linearly independent linearly independent on common domain D, if zero functions function does not have any non-trivial linear combinations of F1 F2 up to Fn, that is if C1 F1 plus C2 F2
plus Cn Fn equal to 0 for all x belongs to D. Okay. Therefore imply C1 equal to C2 equal to dot 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 equal to Cn, which is equal to 0. Okay. This is linearly independent function. जैसे कि जो nth फंक्शन होगा जो सिंपल है f1 f2 fn, इसको कब कहेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट? जब इसमें से कोई भी जीरो फंक्शन मतलब ना मिले और ये नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन हो, तो हम उसको कहते क्या है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ओके। मतलब जीरो फंक्शन के पास कोई भी नॉन ट्रिवियल अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। ये रहा बात लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन का। और इसमें से कोई एक और में मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर डिपेंडेंट फंक्शन। तो नेक्स्ट है मेरा लीनियर डिपेंडेंट फंक्शन। ओके। सो नेक्स्ट है लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है? सिंपल बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो, दी एन फंक्शन, ओके, दी एन फंक्शंस f1 f2 f2 fn are called linearly dependent on common domain D only if there exist C1 C2 up to Cn not all zero such that C1 f1 plus C2 f2 plus Cn fn equal to 0 for all x belongs to D, that is zero function. Function have a non-trivial linear combination of, that is your f1 f2 f2 fn। ये क्या है? ट्रिवियल है, नॉट लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1 f2 एंड fn। ओके। सो ये क्या हो गया? सिंपल लिनियरली डिपेंडेंट की बात है। दी एन फंक्शन, जैसे कोई एन फंक्शन में आपका क्या क्या है, f1 है f2 है fn है, ये कोई फंक्शन है जो कि एन टर्म्स तक का है। ये लिनियरली डिपेंडेंट कब होगा? जब कॉमन डोमेन डी की बात करें अगर, तो इसकी वैल्यूज समथिंग नॉट ऑल जीरोज होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि C1 f1 प्लस C2 f2 प्लस डॉट 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 Cn fn इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल जहाँ पे x बिलोंग्स टू डी है, दैट इज जीरो फंक्शन हैव नॉन ट्रिवियल इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ f1 f2 fn। सो दैट इज दिस इज द योर लिनियर डिपेंडेंट। तो जैसे लिनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात करते हैं कहीं भी हम, जैसे कि अगर लीनियर अलजेब्रा में बात करें, तो उसमें कॉम्बिनेशन जब वेक्टर स्पेस में आता है ना, लिनियर कम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आता है, तो उसमें क्या होता है कि सारे वैल्यूज में से अगर कोई एक वैल्यूज अगर मिल रहा हो तो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। अदरवाइज अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो वो क्या होता है? लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये वेक्टर स्पेस में इस चीज़ की बातें आती हैं।
ये तो हो गई बात प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन की। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है। देन हम उसके बाद में आएंगे रॉन्स्कियन ऑफ nth ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो नेक्स्ट वाला है टॉपिक मेरा फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो, सो सिंपल है। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल है कि यदि कोई फंक्शन गिवन है, मान लेते हैं इफ f1 f2 f3 goes up to fn। ओके, ये फंक्शन गिवन है। ये क्या है? आर एन लिनियरली इंडिपेंडेंट independent solutions of the nth order homogeneous linear differential equation equation is called fundamental set of solution। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब इसको बोल सकते हैं हम प्रोपोजिशन। जैसे कि फर्स्ट क्या होगा, नोट। इसमें कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं। पहले ये समझो क्या होता है कि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस में क्या है कि अगर कुछ f1 f2 f3 और fn ये क्या है, एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, और nth ऑर्डर के होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मतलब क्या हो गया इसमें कि पहला पॉइंट जो आएगा आपका वो क्या आएगा कि जो सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ टू टू सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द nth order homogeneous linear differential equation linear differential equation forms a vector space। सेकेंड पॉइंट होगा इसी में। पहला क्या है कि जो सॉल्यूशन सेट होता है नेट ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। दूसरा है द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द सेट ऑफ nth ऑर्डर
homogeneous linear differential equation. Homogeneous linear differential equation is vector space of dimension of n. क्या होगा? इस वेक्टर स्पेस ऑफ dimension of n. Okay, and third point is every nth order homogeneous linear differential equation homogeneous linear differential equation has exactly a linearly independent solution. Okay, and linearly independent solutions, that is every set of n plus 1 solution is linearly dependent set. फोर्थ पॉइंट क्या है? The solution set of the nth order non-homogeneous linear differential equation नेवर अ वेक्टर स्पेस। मतलब ये है कि मानते हैं कि अगर यहाँ पे कंडीशन दिया है कि ये होमोजेनियस है तो वो वेक्टर स्पेस हो गया। अगर ये नॉन होमोजेनियस वो नेवर भी वेक्टर स्पेस होगा। सिंपल है, तो उस पॉइंट को मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या था कि nth ऑर्डर का होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्टली क्या है? एन लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि डेट इज एवरी सेट ऑफ n प्लस वन सॉल्यूशन लिनियरली डिपेंडेंट सेट रखेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी ऑसम फॉर यू, डेट इज योर Wronskian of nth order homogeneous linear differential equation. So now move on the topic. Which topic? That is your, wait for some minute. Now go to turn on the light. सही है। That is your Wronskian of the nth order homogeneous linear differential equation. So, the Wronskian of the nth order homogeneous linear differential equation so Wronskian of the nth order homogeneous linear differential equation. So what is this? I am saying you. So you have something nth order expression like this. That is your a0x, okay, d to the power
and y upon में dx to the power n plus a1x d to the power n minus 1 y upon dx to the power n minus 1 plus dot 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 plus a n minus 1 x y dash plus a n x. Here is y which is equal to q x. Okay, and x belongs to y which is equal to the Cauchy interval of a comma b. Okay, now a0x comma a1x comma a2x dot 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 anx and qx are continuous function of x and a0x which is not equal to 0 for all x dash. Okay, and let y1 y2 up to yn are n solutions differential equation, then Wronskian of y1 y2 y3 up to yn is defined as follows. So wx which is equal to what? So wx is equal to y1x y2x up to ynx. Okay, and here is y1 dash x y2 dash x ynx. So next one is this y1 n minus 1 x y2 n minus 1 x yn to the power n minus 1 x. This is the simple expression for Wronskian. Okay, it is a Wronskian like this. So this is called as Wronskian of n solution. Let y1 y2 y3 up to yn, okay, or any n solution, any n solution of nth order linear differential equation linear differential equation, or maybe say that it is a function, linear differentiable function, but higher order derivative may or
मे नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या है रॉन्स्कियन का, जैसे कि इसमें होता क्या है, सिंपल मैं आपको बता दूं। देखो कोई nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है सिंपल, और जिसका एलिमेंट जो है मतलब x जो है वो बिलोंग कर रहा है एक इंटरवल से, जो इंटरवल जो है वो क्लोज है। अगर ये ओपन हो जाए तब क्या होगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। सो इसका जो टर्म है आपका a0x a1x a2x an x एंड qx, ये क्या है, सबके सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सब कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑफ x एंड a0x नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x टेक्स लेट y1 y2 yn जो है वो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो रॉन्स्कियन जो होगा y1 y2 yn, ये डिफाइंड होगा कुछ इस तरीके से, एक मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन करते हैं। पहले रो में मतलब जो इनिशियल वैल्यूज दिया रहता है वो सिंपल होगा, देन उसके बाद से फर्स्ट डेरिवेटिव, इस तरीके से हम एंड डेरिवेटिव तक लिखते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं रॉन्स्कियन, क्योंकि रॉन्स्कियन ने इसको डिफाइन किया था। अब जिसमें जो टर्म है y1 y2 y3 और yn, है ना, ये n सॉल्यूशन है, nth ऑर्डर सिंपल है, nth ऑर्डर के सॉल्यूशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हायर डेरिवेटिव मे और मे नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं, है ना। अब इसी के बाद से है, ये तो nth ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। अगर ये सेकेंड ऑर्डर का होता तो क्या होता, मतलब सिंपल ये समझते हैं कि रॉन्स्कियन अगर सेकेंड ऑर्डर का होता तो देन क्या होता। तो आते हैं रॉन्स्कियन के पार्ट सेकंड पे, कि रॉन्स्कियन ऑफ सेकेंड ऑर्डर linear homogeneous differential equation क्या होगा, रॉन्स्कियन का सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझते हैं इसको, थोड़ा सिंपल है। देखो, जैसे सिंपल से एक्सप्रेशन क्या था कि a0x वाई डेरिवेटिव डबल डैश प्लस a1x वाई डैश प्लस a2x वाई इक्वल टू जीरो है, सिंपल है। जहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i विच इज इक्वल टू a कॉमा b हो जाए। ओके, देन a0x which is not equal to 0 for all x belongs to I which is equal to a comma b हो जाए, ये सेकंड हो जाए, ठीक है। where a0x a1x a2x are कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाए। एक मिनट फोन आ रहा है, मैं थोड़ा सा रिसीव कर लेता हूँ, देन बात करता हूँ। हाँ बोलो। अरे भाई बढ़िया है। अच्छा है, कैसा लग रहा है वहाँ पे। अच्छा, फोटो वोटो भेजना लो, है ना, वीडियो कॉल करना लो। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके भेज देना। ठीक है ओके। वेयर a0x a1x और a2x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x है। ओके, फंक्शन ऑफ x है। ओके, एंड a0x नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x, ये सारे टर्म हो गए। ओके, तो मोर ओवर
let y1 y2 are any two solution of differential equation, then WS Wronskian of y1 y2 is given by क्या होगा, WX इज इक्वल टू y1x y2x y1 डैश x y2 डैश x, कुछ इस टाइप से रॉन्स्कियन आएगा। ओके, सो WX क्या होगा, ये विच इज इक्वल टू हो जाएगा y1x y1 डैश x माइनस y1 डैश x और क्या है y2x है। कुछ ये हमारा रॉन्स्कियन है, जिसमें हम इसको क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सेकेंड ऑर्डर का लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, देन हम उसको कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है। जैसे है क्या चीज़, ये तो लीनियर डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप के कुछ टर्म दिए हुए हैं। A0x A1x A2x जो है कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स है, जहाँ पे A0x नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स। देन मोर ओवर लेट y1 y2 जो है टू सॉल्यूशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, देन WX जो है रॉन्स्कियन है किसका, y1 y2 का, इज गिवन बाय WX इक्वल टू y1x y2x, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये हमारा क्या है, रॉन्स्कियन है। तो इसमें कुछ एक नोट टर्म की भी मतलब कुछ चीज़ें हम नोट कर सकते हैं कि नोट के फॉर्मेट में क्या क्या हो सकता है। नोट है यहाँ पे, रॉन्स्कियन इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, differentiable function and hence continuous as y1 and y2 are two solution of, जैसे मान लेते हैं टू सॉल्यूशन में, देयर फॉर इम्प्लाई में A0x y डैश डबल डैश, सॉरी y1 डबल डैश प्लस A1x y1 डैश प्लस A2x A2x y1 इक्वल टू जीरो, ये हो जाए कंडीशन। एंड देन इसमें जो है A0x y2 डबल डैश प्लस A1x y2 डैश प्लस A2x y2 इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाई 3/y2। ओके, एंड दिस इज योर इक्वेशन 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन 4। तो y1 को हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई किया गया y1 से, एंड 4 को, एंड 4/y1, ठीक है। यहाँ 4 लिख दे रहे हैं बाई y1 से, ठीक। नेक्स्ट क्या किया गया,
एंड क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया इसको, सब्ट्रैक्ट। सो वी विल गेट, देखो इक्वेशन थ्री को हम वाई एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन थ्री क्या है आपका, सिंपल है, a0x y1 डबल डेरिवेटिव प्लस a1x y डैश प्लस a2x y1। और इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है इसमें, जैसे ये सारे y1 ही है, तो इसमें हमने y1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, विच इज इक्वल टू जीरो, और सॉरी y2 से। एंड सेकंड जो फोर्थ इक्वेशन है उसको हमने मल्टीप्लाई किया y1 से। सो फोर्थ इक्वेशन में क्या लिखा था, a0x y2 डबल डैश प्लस a1x y2 डैश प्लस a2x, यहाँ पे y2, ये हो गया y1 विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। अब इसके बाद से मल्टीप्लाई किया गया दोनों को और फिर सब्ट्रैक्ट किया गया, तो क्या मिलेगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल है कि a0x जो है यहाँ से हटेगा, और y1 डबल डैश y2 माइनस y1 y2 का होल डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस में a1x, और इधर क्या हो जाएगा, y2 y1 डैश, ठीक, माइनस में हो जाएगा y1 y2 डैश विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा, देयर फॉर इम्प्लाई a0x, और आगे क्या है, w डैश x प्लस a1x wx which is equal to 0, therefore imply wx is solution of first order linear differential equation, hence differential and continuous। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल Wronskian का वर्क। इसी में है कि आपका एबल्स फार्मूला क्या होता है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार, एबल्स फार्मूला। नाउ द एबल फार्मूला। एबल फार्मूला क्या होता है, सिंपल, वो ध्यान देते हैं। जैसे कि डेरिवेटिव आपका है, इसके पहले वाले में हमने W1 और W2 के लिए देखा था, तो सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि एबल फार्मूला में, जैसे कि अगर मैं बात करूं, W को अगर लिखा जाता है तो इसको इस फॉर्मूले में लिखा जाता है WY1 और Y2, देन Y1 डैश और Y2 डैश लिखा जाता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव को, तो Y1 Y2 डैश माइनस Y2 Y1 डैश होगा। ओके, W के लिए, अगर मैं W डैश के लिए बात करूं अगर, तो Y1 Y2 के साथ में Y1 डैश में Y2 डैश का ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू Y1 Y2 डबल डैश माइनस Y2 Y1 डबल डैश हो जाएगा। जहाँ पे देखो एक चीज ये हो गया ना, सिंपल, और ऑन स्क्रीन के लिए लिखते तो ऐसे लिखते थे। अब एबल्स फार्मूला में क्या है कि जैसे कि सिंपल है कि a0x
y डबल डेरिवेटिव प्लस a1x y डैश प्लस में a2x y विच इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल a कोमा b हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया वेर वेयर a0x प्लस, सॉरी, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है ना कि a0x और a1x ये असल में है क्या चीज़। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द, ओके। हाँ, देखते हैं, एक मिनट। आया ये, हाँ हो गया। सो a0x और a1x कॉमा a2x आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा x का, और a0x जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो मोर ओवर लेट y1 comma y2 are any two solutions of differential equations, then क्या हो जाएगा, then wx which is equal to a to the power minus a1x on में a0x, okay, called Abel's formula. So this is the fundamental rule of how to we get something like this. This is your what? Abel's formula. A represent for Abel's formula. Okay. So now the class is over now. Okay. Uh, in next day, I will teach you some important result based on Wronskian and some notes which is about some linearly independent, dependent or something like this. So my next topic will be related to Wronskian with some MCQ added. Okay. So now thanks for watching these videos. So you meet in next class. I hope tomorrow maybe. So come to on time and join my channel. And also during if any students wants to learn with me, they can join on my WhatsApp number as well as on my YouTube as well as on my Zoom cloud meeting app. I will send you some cloud meeting app. So anyone can join with me. I hope for higher education and for lower education. It means for BSc students, for 12 students, as well as for 10 students. So only for mathematics, this channel related to only for mathematics. So thanks for watching these videos. Meet you next day. I hope everyone maybe enjoy the lecture. So thanks for watching these videos. So you meeting tomorrow. So thanks for watching these videos.